Hello everyone, welcome to Shriram IS. In 1PYQ a day series, today we are going to discuss governance question. Before starting with the question, you can avail free one-on-one mentorship to get your doubts solved by clicking on the link given in the description. So here is the question. This question appeared in year 2025. Question is for 10 marks, 150 words. Right? The question is, civil society organizations are often perceived as being anti-state actors than non-state actors. Do you agree? Justify. Now understand, the question is quite simple. Civil society organization, it's a repeated theme, means it is not something new in the examination. Now question is focusing on perceived. So it is not the fact, but the thing is that they are telling कि in general civil society organization are being perceived as an anti-state. They are clearly anti-state actors, means they are working or acting against the state rather than non-state actors, right? And the examiner is asking, do you agree? Of course, when someone says, do you agree? Someone will agree and a few will say no. Yes and no, both aspects will be there. Along with that, justify. So justify means you have to provide certain data, maybe name or maybe even examples to support your argument, right? So this is the whole crux of this question. Now let's talk about the introduction part. In introduction itself, the question is revolving around the civil society organization and its perceived state, non-state, anti-state. So it is advisable to give introduction around the civil society organization, that is a definition. So when you talk about civil society organization, it is any non-profit organization which is task oriented and driven by people, right? And it is organized, this CSO, it is organized at maybe local, maybe national, or maybe even international level, है ना? So this much, a simple definition would be suffice. Why? Because the question is how we perceive it, एंटी स्टेट और नॉन स्टेट. ठीक है, तो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल में हम ये चीज यहाँ पे लिख देंगे, अ डेफिनेशन पार्ट, देन अ बॉडी पार्ट. परसीव्ड एज अ एंटी स्टेट एक्टर, यहाँ पे फोकस रहेगा कि परसीव, देखिए वो है नहीं, ये माना जा रहा है. परसीव्ड, वाई? देखिए, क्वेश्चनेबल फॉरेन फंडिंग, क्वेश्चनेबल हम एब्सोल्यूट टर्म में नहीं लिखेंगे कि ऐसा हो रहा है, बिकॉज इट्स जस्ट अ परसेप्शन, वो गलत हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स है मैक्सिमम केसेस में. सो गवर्नमेंट सेज देयर इज अ क्वेश्चनेबल फॉरेन फंडिंग, बट यू हैव टू जस्टिफाई. क्यों? पहले डू यू एग्री में मैं बोल रहा हूं कि यस आई डू एग्री दैट इट इज परसीव्ड एज एंटी स्टेट एक्टर, बाद में डिनाई करेंगे कि नहीं मैं एग्री नहीं करता, जस्टिफाई करना है. क्वेश्चनेबल फॉरेन फंडिंग, ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका वायलेशन हो जाता है. कुछ समय पहले सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया, इस पे एफआईआर रजिस्टर किया था. इट्स अ सिविल सोसाइटी, ठीक है. सो वी हैव प्रोवाइडेड अ एग्जाम्पल्स. क्या हुआ था? वी आर जस्टिफाइंग इट कि अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट देयर इज अ वायलेशन ऑफ सम रिपोर्टिंग मैकेनिज्म. सीबीआई ने क्या किया? ऑक्सफैम इंडिया पे एफआईआर कर दी. अब क्या हुआ? वी आर परसीविंग इट करे इट्स एन एंटी स्टेट एक्टर. फॉरेन फंडिंग आ तो रही है, बट दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द इंडियन रेगुलेशंस एंड रूल्स में भी, तो कुछ गलत हो रहा है. परसीव्ड ओनली. देन ऑब्स्ट्रक्टिंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, काफी बार आपने न्यूज में सुना होगा, ग्रीन पीस, है ना, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. वैसे इफ यू चेक ऑन द यूनाइटेड नेशंस वेबसाइट, वहां पे लिखा है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन also referred as non-governmental organizations. ठीक है. ग्रीन पीस, अब देखिए ऑब्स्ट्रक्टिंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, व्हाई? बिकॉज दे आर अपोजिंग थर्मल और इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया.
हम फिलहाल रीजन पे नहीं जा रहे कि वाई दे आर अपोजिंग, बट लुक ऑन द फेस हाउ इट इज बीइंग परसीव्ड. हमें लग रहा है कि वी आर इनटू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, इंडियन गवर्नमेंट. दीज आर दी CSOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, अपोजिंग इट, सो परसीव्ड. ठीक है. मलाइनिंग गवर्नमेंट इमेजेस. अब इसका क्या है देखिए, जम्मू एंड कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, जम्मू एंड कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी. ठीक है, KCS, coalition of civil societies. There are also a civil society organizations. They accused government is harassing, even oppressing whom? Human rights defender. कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर. They talked about reprisal by the armed forces. They are suppressing the human rights defender. अब यहाँ पे क्या हुआ? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली गवर्नमेंट की जो इमेज है उसको मैला कर रही है. दे आर मलाइनिंग द इमेज. दे आर टेलिंग कि लुक व्हाट योर मिलिट्री इज डूइंग, दे आर सप्रेसिंग द ह्यूमन राइट्स, है ना. तो कहीं ना कहीं वे टॉकिंग अबाउट कि लुक इट इज परसीव्ड कि ये हो रहा है, दो इट इज नॉट द केस. सो जम्मू एंड कश्मीर कोलिशन फॉर सिविल सोसाइटीज, ये भी एक एग्जाम्पल है. देन इन्वॉल्वमेंट इन अनलॉफुल, यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज. अब देखिए कैसे होता है. वी हैव ए इंडिविजुअल पीपल. अब वो आप किसी को एक्टिविस्ट बोल सकते हैं, है ना, या फिर जर्नलिस्ट भी है. व्हाट बेसिकली हैपनिंग, government now and then have enacted sedition cases, sedition law, कभी national security act on few individuals who are supposedly involved into some unlawful activities. Now they are being a part of some civil society organizations. लिंक ऐसा होता है कि अरे कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर फ्यूलिंग दिस इंडिविजुअल टू एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. किसी किसी के ऊपर UAPA भी लगाया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, है ना, बहुत से ऐसे. तो इसलिए क्लास पॉइंट रखा है कि इन्वॉल्वमेंट इन अनलॉफुल एक्टिविटीज, बट अगेन इट इज परसीव्ड एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग इट अंडर अ परसीव्ड नोशन कि हाँ भाई ये एंटी स्टेट काम कर रहे हैं, स्टेट नॉन स्टेट वाला काम नहीं कर रहे. देन अनदर हेडिंग, बिकॉज वी सपोर्टेड कि यस, डू यू एग्री? हाँ. नाउ आई से कि आई डोंट एग्री. They are not perceived as anti-state actor, but they are functioning as a non-state actor. ये नहीं लिख सकता हूँ कि perceived as a non-state actor. Why? Basically, civil society organizations जो है वो non-state actors ही है. उसमें ऐसा perceive होने वाली क्या बात है? Perceive तो against हो रहा है ना, कि non-state नहीं anti-state actors है. So I wrote functioning as a non-state actors. Again, now I'm not supporting the statement. Now I have to justify it. Social development, education, health और किसी भी जगह पे बोल सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आप एक नाम दे देंगे, स्माइल फाउंडेशन. ठीक है, क्योंकि when you talk about a developmental activities by the some NGOs or maybe civil society organizations, आपको पता लगेगा there are so many instances, है ना, few instances just hitting the perception of the populations. Economic development, yes, we have a particular civil society organization. The name is Center for Civil Society. Okay, Center for Civil Society. It's a CSO, Civil Society Organization, working in the domain of public policy. Of course, public policy to bring a greater human development, a better one. So they are ultimately participating in a economic development. Justify करना है, and that's why we are giving examples. ठीक है. Environmental protection, there is a name Indian Environment Society. We largely know what they do. When we talk about Indian societies,
specifically working for the protection of environment. There are so many, right? It is just one name. What exactly they are doing? They are acting as a watchkeeper. What we call generally word is watchdog, है ना? If there is anything against environment, any developmental project or any project, basically they assess, they analyze, and they provide government a fair report, or maybe they pose a fair, what we call it, a fair question कि सरकार देखिए ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं and this is the harm which is happening to the environment, right? So that is another aspect to it. Beyond that, rural development, a well-known name, भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन. रूरल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, देखो एजुकेशन हेल्थ तो सब जगह पे है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ना? दैट इज हाउ यू टॉक अबाउट अ डेवलपमेंट. ये इंडिपेंडेंटली भी हो रहा है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ रूरल डेवलपमेंट वेरी स्पेसिफिकली, तो इनके सोशल रिक्वायरमेंट है ना. ऑफ कोर्स एजुकेशन हेल्थ तो होता ही है, बट मे बी कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड इंफ्राज. So of course they are involved, they are working in favor of the development, and that's why I have mentioned the heading here, functioning as a non-state actors. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, विल कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, क्योंकि परसीव्ड, देखिए क्वेश्चन कितना ट्रिक, नॉट जस्ट अ ट्रिकी, बट हाउ ब्यूटिफुली दे फ्रेम द क्वेश्चन स्टेटमेंट, परसीव्ड. इसलिए जनरली फर्स्ट पार्ट में आपको एग्जांपल्स काफ़ी कम मिलेंगे, वो भी ऐसे जो मान लीजिए हर बार प्रूवन नहीं होता है ना. जैसे कि ऑक्सफैम के ऊपर अगर एफआईआर कर दिया है सीबीआई ने, तो डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट वर्किंग. वी ऑल नो इनइक्वालिटी, गिनी कोफिशिएंट, हमेशा ऑक्सफैम रिपोर्ट्स की बात की जाती है व्हेन इट कम्स टू इनइक्वालिटी, सो इट्स एक्सेप्टेड ना. बट फ्यू इंस्टांसेस आर देयर, अदरवाइज ऐसा नहीं कि गलत है, बिकॉज वी हैव टू जस्टिफाई दिस परसीव्ड टर्म. Functioning quite simple and straightforward, and then we'll come to the conclusion. Now understand, we have to change the perception ultimately, because question में क्या पूछा गया है, question is framed in such a way they are telling कि देखिए नागरिक समाज संगठनों को गैर राज्य अभिनेता की तुलना में प्राय राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है. परसीव्ड, क्या आप सहमत है? औचित्य सिद्ध कीजिए. परसीव्ड तो हम तो बोल देंगे कि नहीं, परसीव नहीं है, वो तो हमें पता है, यही बोलना है. बट देन अगेन यू हैव टू कंक्लूड ऑन अ बैलेंस्ड नोट, टेल दैट रेगुलेशंस आर देयर, राइट? वी हैव अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. अगेन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इंटरवेनिंग टाइमली. यस, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट परसीव्ड, व्हाट इज दिस परसेप्शन? ये परसेप्शन कैसे बनता है, कैसे परसेप्शन बनता है? सुना था, सरकार कह रही है, कर रही है, सोशल मीडिया, अदर थिंग्स, बट द थिंग इज दैट already the regulations are in place and the government is intervening in a timely manner. All we need is a fair use of law and information in public domain. देखिए इंफॉर्मेशन एंड फेयर यूज, ये दोनों आपका परसेप्शन बदल सकते हैं. जनरली क्या होता है, who generally wanted to make a statement against the government, they will say कि अरे देखो फेयर यूज नहीं हो रहा है, सरकार के पावर है तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है. परसेप्शन बिल्ड हो रहा है ना, वी हैव टू ब्रेक दैट परसेप्शन. इसलिए फेयर यूज ऑफ लॉ, इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन, दो चीज दे दो. सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट क्यों रहो, social media is very powerful. Ultimately this perception will break, right? So this is the whole answer. In a very simple and holistic manner you can simply conclude it, right? So this is all about today. Thank you everyone.